chairperson ma'am, for the teachers, and my dear friends. I belong to Achievers House, and the motto of the house is Aim at and Achieve. Today I am here to present a speech on importance of education. Education plays a very important role in everyone's life. Education is a basic human right. It provides freedom and empowerment to everyone. It makes us independent. It provides us a good career, good lifestyle, a good status in the society, and make us self-confident. Thank you. Have a nice day ahead. Chairperson ma'am, respected teachers, and all my dear friends. I, Supriya, a student of Blazers House, standing here to present a speech on the importance of time. We all know that time is very important in our life. Time is the most valuable thing in the universe. Time never waits for anyone. It keeps going whether someone likes or not. Anyone who understands the value of time works in an efficient manner and achieves their goals. Time plays a vital role in a student's life. Students should be on time everywhere, in the assembly, in the exam hall, in the classroom, etc. Suppose if we had not arrived here on time, will this competition be able to start by this period? No, all the classes will be disturbed. We should be thankful to our chairperson ma'am teachers who push us to be on time everywhere. If you want to do something better in life, it needs proper use of time. So we should work hard and achieve our goals, and let's fly with time, and your time starts now. All the best. At the last, I conclude my words through a poem. Clock is ticking, so as time is running, stand up, stop complaining. Opportunities are decreasing. Why later? Time is wasting. Try now, go and do that thing. Thank you. Good morning to one and all present over here. I am Lavanya. I study in class 4. I belong to Challengers House, and the motto of my house is take challenges confidently and conquer. Today, I am here to speak a few words about my favorite outdoor game. Different people like different games. Some like cricket, tennis, etc. I like many sports, but my favorite sport is football. Football is an outdoor game. It is an international game. It makes a person disciplined, calm and punctual. It provides a lot of benefits to physical and mental health. It is played between two teams in an open space. Each team has 11 players, one referee and two linemen direct the match. It is played by kicking a ball with foot. A team becomes winner which scores highest goals at the end of the match. Thank you and have a wonderful day ahead. Good morning everyone. My name is Prajal Joshi of class 3rd. Today I am standing in front of you to deliver the speech on importance of yoga. Yoga is the best exercise for human body. It is most important for everyone's life. It helps in balancing the relationships between body and mind. Yoga is a Sanskrit language between union and discipline. It is breathing exercise which one learn to control movement of different organs of body and connects body with soul. The yoga is the best Indian ancient practice with great benefit. Yoga helps keeping our mental and physical health intact. Thank you. सुप्रभात, मेरा नाम हर्षिता साहू है। कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरा हाउस अचीवर्स हाउस है। मैं आज आप सभी के सामने निबंध प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे निबंध का नाम है मेरे सपनों का भारत। भारत एक बहुत सांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज है। यहाँ पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी दी गई है जिनमें भारत को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा और रोजगार। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ हर नागरिक शिक्षित होगा और हर किसी को योग्य रोजगार का मौका मिल सकेगा। धन्यवाद। बस बढ़ता चल, लक्ष्य पथ पर चलता चल, संभव है इसमें बाधाएं आना, इन बाधाओं से तू लड़ता चल। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात।
मैं आरबीएमएल कक्षा 4 की छात्रा ब्लेजर्स हाउस से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आदर्श विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या पाने वाला। आदर्श यही है जो सीखने की इच्छा से ओतप्रोत हो, जिसमें ज्ञान की गहरी ललक हो। विद्यार्थी अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व विद्या को देता है। विद्यार्थी का सबसे पहला गुण है जिज्ञासा। वह नए नए विषयों के बारे में नित्य नई जानकारी चाहता है। विद्यार्थी केवल पुस्तकों और अध्यापकों के भरोसे ही नहीं रहता, अपितु स्वयं मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करता है। सच्चा छात्र श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान ही ज्ञान पा सकता है। जो छात्र सुख सुविधा और आराम के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये अपनी जीवन की नींव को भी कमजोर बना लेते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। आदर्श विद्यार्थी परिश्रम, लगन और तपस्या की आग में पिघलकर स्वयं को सोना बनाता है। जो छात्र सुख सुविधा और आराम के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये अपने जीवन की नींव को ही कमजोर बना लेते हैं। आइए हम भी आदर्श विद्यार्थी बनते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, शिष्यगणों, मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम भाविका पांडे है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। यहाँ उपस्थित हम सबके पास एक चीज समान मात्रा में है और वो है समय। तो आज मैं समय के सदुपयोग पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम सभी अपने अपने जीवन का समय का उपयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं? समय के सदुपयोग पर 3 घटक है। पहला, दैनिक दिनचर्या बनाना। दूसरा, व्यक्ति किसी कार्य को टालना नहीं चाहिए। तीसरा, समय का उपयोग सृजनात्मक ढंग से करना चाहिए। कबीर जी ने कहा है, कर करे सो आज कर, आज करे तो अब, पर में पहले होएगी, भौरी करेगा कब। जो समय के महत्व को नहीं समझते, वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। समय चक्र जब चलता है, फल करने का मिलता है। बैठ कर अब तुमको समय नहीं गंवाना है। लक्ष्य ठान कर अब तुमको आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम गर्वित बिष्ट है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष खेलों के महत्व के ऊपर कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। खेल मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। खेल मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। खेल से दिमाग सक्रिय होता है। खेल से मित्रता की भावना विकसित होती है। खेल हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। खेलने से हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है। धन्यवाद। जिंदगी गुजरने लगी है किश्तों पर, यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। सुप्रभात प्रिय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे सहपाठियों, बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दूरभाष यंत्र आज के समय में हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह केवल बातचीत करने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि इसके जरिए हम अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट से कई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और कई सारे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। परंतु जैसा कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार मोबाइल फ़ोन के फायदे हैं तो नुकसान भी। मोबाइल फ़ोन का सही उपयोग विद्यार्थियों के लिए उनकी शिक्षा में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और कई शिक्षा संबंधित अनुप्रयोग अर्थात शैक्षिक ऐप्स हैं जो हमारी पढ़ाई आसान बनाते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा उपयोग विद्यार्थियों के लिए उनकी पढ़ाई में काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है और ज़्यादा दूरभाष यंत्र का उपयोग हमारी एकाग्रता भी खराब करता है। इसलिए हमें दूरभाष यंत्र का कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमें इसका उपयोग केवल अपनी पढ़ाई और ज्ञान के लिए करना चाहिए, ना कि समय बर्बाद करने के लिए। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि दूरभाष यंत्र का कम से कम उपयोग करें और अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करें, ताकि आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। धन्यवाद। जिसने समय को जाना, उसने अपने भविष्य को पहचाना। जिसने समय को नहीं जाना, उसने खुद को भी नहीं पहचाना। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं काबिल नूनी कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष समय का सदुपयोग पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। समय संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है, जो एक बार खो जाने पर कभी वापस हासिल नहीं हो सकती है। धन संपत्ति खो जाने पर हम फिर से परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हैं,
एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम प्रांजल जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने प्लास्टिक की दुनिया विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। वह अनेक द्रव्यों और धातुओं की खोज की गई है। प्लास्टिक भी विज्ञान की ही देन है। प्लास्टिक के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर पार्क्स। इसके निर्माण में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि। प्लास्टिक का जब से आविष्कार हुआ है तब से यह दुनिया रंग बिरंगी हो गई है। इसके गुणों के कारण इसका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। घर का सारा सामान जैसे फर्नीचर, वाहन, खिड़की, दरवाजे आदि प्लास्टिक की मदद से बनाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो प्लास्टिक के जितने लाभ है उतने ही उसके दोष भी है। प्लास्टिक की थैली को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। फेंकने पर यह नालियाँ बंद कर देता है। इधर उधर फेंकने पर यह जंगली जानवर, गाय भैंस खा जाते हैं और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। और जलाने पर यह प्रदूषण पैदा करता है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। सुप्रभात शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम हर्षित जोशी है। आज मैं आप सभी के सम्मुख प्लास्टिक की दुनिया पर कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्लास्टिक का उपयोग होता है आसान, प्लास्टिक का उपयोग होता है आसान, पर यह हमारे लिए है जहर समान, पर यह हमारे लिए है जहर समान। संसार के सभी पदार्थ प्रकृति की ही देन है, परंतु प्लास्टिक मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि प्लास्टिक की दुनिया मनुष्य की ही देन है। आकर्षक होने के कारण प्लास्टिक ने सभी घरों, दफ्तरों और वाहन इत्यादि में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। खाद्य पदार्थों की पैकिंग में भी प्लास्टिक बैगों का प्रयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक के अघुलनशील होने के कारण यह पृथ्वी पर प्रदूषण का कारण बना हुआ है। जलाए जाने पर इसके अंदर मौजूद कार्बन हवा में घुलकर वायु प्रदूषित करते हैं। अतः अब प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। आज के मानव के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह इस प्लास्टिक की बनावटी दुनिया से बाहर निकलकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने में अपना योगदान दे। आओ मिलकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने का संकल्प करें, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। धन्यवाद। Morning to respected chairperson, ma'am, teachers and my dear friends. I am Purjubas and I belong to Achiever's House. The motto of my house is aim, act and achieve. Today I am here to talk about a topic that most of us are familiar with, social media and how it affects our mental health. Social media platforms like Instagram, Snapchat and YouTube are fun, right? They allow us to connect with friends, share pictures, watch movies or even learn new things. But just like anything else, there is a good and a bad side to it. Social media help us to connect with others and learn new things. Thank you and have a nice day ahead. Environmental pollution is one of the most serious issues facing our world today. It is the contamination of our natural surroundings like air, water and soil by harmful substances. Environmental pollution is mainly due to smoke emitted vehicles, plastic waste in our land, etc. Thank you. A very cheerful morning to one and all present over here. My name is Kartav Joshi, a student of class 6B. I belong to Challenger's House and the motto of my house is take challenges confidently and conquer. Today I am standing in front of you to deliver a speech on the topic, the power of positive thinking. So without wasting time, let's begin. Positive thinking is a powerful tool which can be used to transform our life. It can be used to change the way we act, feel or think and can have a profound impact on well-being, relationships and success. It's not just about having a sunny disposition or ignoring problems. It's about approaching life with a sense of hope, possibility and optimism even in the face of adversity. When we think positively, we are more likely to see opportunities instead of obstacles in the face of setbacks and challenges. Thank you and have a blissful day ahead. Once you replace negative thoughts with positive ones, you will start having positive results. A very warm morning to one and all present over here. Honorable Chairperson Ma'am, respected teachers and all my schoolmates. I am Gitanjali Pandey, a student of class 8B.
I belong to Terminus House and the motto of my house is determined to and deliver. I heartily express my gratitude for my house teachers who gave me this golden opportunity to express my views before you all on the topic importance of positive thinking. Positive thinking is one of the most powerful tools we have to transform our lives. It has the power to change the way we think, feel and act, and it can have a profound impact in our well-being, relationship and success. Positive thinking is not just about having a sunny disposition or ignoring problems. It's about approaching our life with a sense of hope, possibility and optimism even in the face of adversity. People who think positively are likely to see opportunities instead of obstacles and are more resilient in the face of setbacks and challenges. Thank you and have an auspicious day ahead. If you like the video, like, share and subscribe our channel.